Good morning, students, and welcome to the online lecture of Sharadi More English High School. So today I'll start chapter number 10, urbanization. So what is mean by urbanization? So, for example, there is a small village area, okay, and if the area is developing, area क्या हो रहा है? Develop हो रहा है, उसमें other facilities भी available हो रही है, like schools, colleges, hospitals, right, road and factory etc. ये सारी facilities अगर वहाँ पे develop होना start होती है, so that is called as urbanization. Okay, so here you can see there is a conversation given. So whenever you will read this conversation, you will get the exact meaning of urbanization. Okay, so now let's read it first. Tatya, Suresh, I'll come late to the field today. You go ahead, Suresh. But father, today I was thinking of going to the factory. So Tatya asked why. Suresh, I think I should work in that factory. Tatya, work in the factory for what? Suresh, father, if I work in the factory, I'll get a monthly salary. If I work overtime, I'll get additional money. Also, I'll get bonus in Diwali. Tatya, but what about our fields? Suresh, I'll also look after the fields simultaneously. Tatya, all that is fine, but will you be able to manage all this? Suresh, Tatya, I'll look after all that, you don't worry. We should think of the future now. Our village will change drastically from what it looks now. Tatya, what changes are you talking about? Suresh, oh Tatya, recall your past. Remember the earlier village, how small was our village? And look at our village today. Today there is no factory near our village. Our field is near the village because of the factory. Roads will develop and facilities like hospitals, schools and colleges, city offices will come up. Huge buildings will stand tall in the village. People from outside will come and stay here. The sprawl of the village will increase. Village will develop. Okay. So now here the conversation shows that जो सन है, तात्या का जो सन है वो किसके बारे में बात कर रहा है? फैक्ट्री जाने के बारे में. तो जो तात्या है, जो उनके फादर है, वो पूछते हैं कि क्यों जाना है. सो वो पूरा एक्सप्लेन करता है कि हमारा जो विलेज है वो क्या होगा, मे बी फ्यूचर में डेवलप हो सकता है, थोड़ा और डेवलप. पहले बहुत छोटा था हमारा विलेज, बट ये क्या हो चुका है, आज बड़ा हो चुका है. हमारे विलेज के नियर साइड फैक्ट्री है. वैसे ही फ्यूचर में इस फैक्ट्री की वजह से और बहुत सारी फैसिलिटीज भी डेवलप हो सकती है. सो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, एक अदर ऑक्यूपेशन का सोर्स बनाने के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए. मीन्स जो उनकी फील्ड्स है, राइट, इसके अलावा वो आगे और अदर ऑक्यूपेशंस में आगे बढ़ सकते हैं. वो क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं. सो दैट इज कॉल्ड द अर्बनाइजेशन. मीन्स whenever a small village area converts into a town, into a city having all the facilities, that is urbanization. Okay, geographical explanation. You'll notice that because of the factory near the village, the occupation of the people of the village has started changing. More and more people from outside come and start living in the village. Transport, hotels, restaurants, masses, retail shop, medical services, etc. start developing. As a result of basic structure of the village start changing. Okay. क्या बोला हुआ है कि आप नोटिस करोगे कि अगर विलेज के नियर तो अगर आपके विलेज के नियर कोई फैक्ट्री है, राइट, तो फैक्ट्री में अब देखो लोगों के लिए क्या है, एक इनकम सोर्स है ना. फैक्ट्री में अलग अलग वर्कर्स वर्क करते हैं, एम्प्लॉयज वर्क करते हैं, तो लोगों का वो इनकम सोर्स है. वहाँ पर मोर एंड मोर पीपल क्या करेंगे, बाहर से आएंगे, वहाँ रहना स्टार्ट करेंगे, वहाँ पर अपना ऑक्यूपेशन फाइंड करेंगे. और इस तरीके से जो विलेज है, जितनी ज़्यादा उसकी पॉपुलेशन होगी, वो उस लोगों की सारी फैसिलिटीज़ भी पूरी करनी होगी, सारी डिमांड नीड रिक्वायरमेंट कंप्लीट करनी होगी. उनके लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, राइट, रेसिडेंशियल एरिया डेवलप करना पड़ेगा, मेडिकल एंड अदर शॉप सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेगी. इस तरीके से वो जो पर्टिकुलर एरिया है वो क्या हो जाएगा, टोटली डेवलप हो जाएगा. Looking at our country, agriculture is the main occupation in rural areas. Agriculture and its allied occupation are being followed since times immemorial. But now various industries have started coming up in the rural areas. For example, factories, mills, energy plants, multi-purpose projects, etc. People come from the surrounding regions to work here, and thus the population of the village increases. To fulfill their needs, other services also develop like medical facilities, food, hospitals, recreation, etc. Consequently, the extent of the village grows and the form of the earlier village changes. Okay. Now it is mentioned here कि जैसे हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन है रूरल एरियाज का, विलेज एरियाज का, राइट. जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड अलाइड मीन्स और उससे रिलेटेड जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन है वो लोग ज़्यादा फॉलो करते हैं. बट
अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे रूरल एरियाज में भी फैक्ट्रीज बनना स्टार्ट हो रही है, मिल, एनर्जी प्लांट सब बन रहे हैं। तो इसकी वजह से वहाँ पे पीपल ज़्यादा आ रहे हैं, लोग वहाँ पे अपने इनकम सोर्स के लिए रहने आ रहे हैं। तो उन इस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है और उनकी डिफरेंट फैसिलिटीज़ भी उनके लिए अवेलेबल की जा रही है। The Gram Panchayat providing public services to the village gives way to municipal council or municipal corporation. These bodies provide different basic services to the citizens like drinking water, road transportation, sewage network, street lighting, etc. Besides these, other facilities like town planning, recreation facilities, tourist places, parks, etc. also need to be developed. Consequently, the village transform into a town and city. जो ग्राम पंचायत है जो क्या करते हैं, डिफरेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं लाइक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इन द सिटीज। तो वो क्या करते हैं, सिटीजन्स को ड्रिंकिंग वाटर, सीवेज नेटवर्क और रोड ट्रांसपोर्टेशन और जो स्ट्रीट लाइट्स होती है उस सारी चीज़ों की फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ मेडिकल फैसिलिटीज़, टाउन प्लान करते हैं प्रॉपरली, अदर फैसिलिटीज़ लाइक टूरिस्ट प्लेसेस एंड पार्क, जो इन बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट अदर नीड्स भी उनकी क्या करने लगते हैं, फुलफिल करने लगते हैं। सो इस तरीके से जो विलेज है वो कॉन्सिक्वेंटली किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, इनटू अ टाउन एंड सिटी। ओके, नाउ in 1961 the census of India has decided to define urban on the basis of the following criteria. More than 75% of the male working population should be engaged in non-agricultural occupation. अच्छा, अर्बन एरिया मीन्स ऐसा एरिया जो क्या टाउन सिटी में इंक्लूड होता हो। अर्बन पॉपुलेशन जो क्या है, टाउन सिटी में रहने वाली पॉपुलेशन। तो जो अर्बन टर्म था वो किससे रिलेटेड था इन 1961 कि 75% जो मेल है जो काम करते हैं ऑक्यूपेशन, वो किस में होने चाहिए, नॉन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन में। मीन्स ओनली 25% किस में इंडल्ज होने चाहिए, एग्रीकल्चर में। अदर देन दैट 75% नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन, तब जाके उसको कंसिडर किया जाएगा अर्बन। द पॉपुलेशन ऑफ द सेटलमेंट शुड बी मोर देन 5000। अब किसी भी सेटलमेंट पैटर्न, जो सेटलमेंट पैटर्न है, सेटलमेंट एरिया है, वहाँ का पॉपुलेशन कितना होना चाहिए, मोर देन 5000। The population density of the settlement should be more than 400% square per square kilometer. The population density मतलब कि एक पर्टिकुलर पर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में कितने एवरेज पर्सन रह सकते हैं, तो शुड बी मोर देन 400%। ओके, सो तब जाके उस पर्टिकुलर एरिया को अर्बन एरिया डिक्लेयर किया जाएगा, राइट। यूजिंग दिस टेक्निकल इन्फॉर्मेशन गिवन इन द टेबल बिलो, ड्रॉ अ लाइन ग्राफ ऑफ द परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन यूजिंग कंप्यूटर। डिस्कस in terms of urbanization. After studying this graph, write the conclusion about urbanization in our country from 1961 to 2011 in your own words. Here you can see a tabular data is given, जिसमें 1961 से 2011 तक आप देखोगे कि जो urban population है वो क्या हो रहा है, consistently increase हो रहा है, right? So talking of the urbanization in India, the urban population has been increasing consistently from 1961 to 2011. From 1961 to 1981, this growth was around 5.5% only. But from 1981 to 2011, this growth was around 13.37%. This means that the urban population is increasing rapidly in India. Urbanization occurs because of many reasons. We will study some of the main reasons. Here you can see ये जो टेबुलर डेटा है उसमें आप देख सकते हो कि 1961 से 1981 का जो ग्रोथ है वो 5.5% के नियर ही हुआ है, मीन्स कम ग्रोथ हुई है। बट 1981 के बाद 2011 तक ग्रोथ ज़्यादा है, दैट इज नियरली 13.73%, राइट। तो इस तरीके से जो अर्बनाइजेशन है वो इंक्रीज हो रहा है। तो अर्बनाइजेशन इंक्रीज होने के कुछ रीजंस हो सकते हैं, जिसमें से कुछ रीजंस हम लोग यहाँ पे गिवन है। देखो फर्स्ट क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या मतलब होता है, देखो कि एक पर्टिकुलर रीजन में इंडस्ट्रीज बढ़ जाना, इंडस्ट्री कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन अ रीजन शुड बी इंक्रीज। और जैसे ही वो इंडस्ट्रीज बढ़ेगी वहाँ पर लोग क्या करेंगे, मोर एंड मोर पीपल विल कम इन सर्च ऑफ इनकम सोर्स, राइट। इनकम सोर्स ऑक्यूपेशन के लिए वो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, वहाँ पर सेटलमेंट पैटर्न्स, फिर उनके लिए रेजिडेंशियल एरिया, उनके लिए अदर फैसिलिटीज अवेलेबल की जाएगी। इस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से भी क्या होता है, एक रीज़न है, दैट इज अर्बनाइजेशन अकर होता है। ट्रेड, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ट्रेड। अब देखो या कोई एक पर्टिकुलर रीजन है जहाँ पे कोई कमोडिटी, कोई रॉ मटेरियल ज़्यादा अमाउंट में हो रहा है, तो उसको रखने के लिए क्या होता है, उसको रखने के लिए स्टोरेज हाउस बनाया जाता है, राइट। ट्रांसपोर्टेशन, फिर वहाँ से उसको क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ यूज़ की जाती है, राइट। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ यूज़ की जाती है।
सो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ फिर उसको और अच्छे तरीके से डेवलप किया जाता है, वहाँ पर और अदर फैसिलिटीज़ अवेलेबल की जाती है. सो इन दिस वे वो एक रीज़न होता है, ट्रेड भी क्या होता है, एक रीज़न होता है फॉर अ रीजन टू बी कन्वर्टेड इनटू एन अर्बन एरिया. ओके, नेक्स्ट. Mechanization and technology. We can see lots of advantages of mechanization and technology in various fields. Both are helpful to urbanization too. In the recent decades, the use of technology has increased in agriculture. Mechanization has also increased. In rural areas, agriculture is done with the help of machines on a large scale these days. The manpower employed in agriculture became devoid of agriculture work. This working class came to cities to look for work. As a result, urban population started increasing. आपको कि हम लोग को बहुत सारे एडवांटेजेस मिलते हैं मैकेनाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी के यूज़ की वजह से बहुत सारे काम हमारे क्या हो चुके हैं, ईजी हो चुके हैं. और इसी तरीके से जैसे हर फील्ड में टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, वैसे ही एग्रीकल्चर जो हमारा प्राइमरी ऑक्यूपेशन है उसमें भी क्या टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है. डिफरेंट मशीन्स जो डेवलप की जा रही है वो आजकल क्या हो रही है, एग्रीकल्चर में यूज़ हो रही है. और इस तरीके से जो मैन पावर है वो कम हो रहा है. सो जो वर्किंग क्लास है, वो जो मैन पावर है, उन जिनको ऑक्यूपेशन नहीं मिल पा रहा है, तो वो कहाँ आते हैं, सिटीज़ में आते हैं वर्क के लिए. अदर एरियाज में क्या करते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं. तो इसके तरीके से अर्बन पॉपुलेशन क्या हो जाती है और इंक्रीज हो जाती है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. In regions where transport facilities like road and railways develop, urbanization of small rural settlements occurs rapidly over there. For example, after the development of Konkan Railway, many villages like Savarde district Ratnagiri lying close to its proximity have started urbanizing. Convergence of important rail routes through Bhusawal district Jalgaon led to its rapid growth. Okay. Now क्या given है कि ऐसे regions जहाँ पे transport facilities जैसे कि road, railways develop होती है, अर्बनाइजेशन ऑफ स्मॉल रूरल सेटलमेंट्स अकर रैपिडली ओवर देयर. तो वहाँ पे स्मॉल रूरल एरियाज का जहाँ पर सेटल ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज क्या होती है, धीरे धीरे डेवलप होती है, वहाँ पर अर्बनाइजेशन क्या होता है, रैपिडली अकर होता है. जैसे कि अगर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, एक एग्जांपल दिया हुआ है कि जो कोंकण रेलवे है उसके डेवलपमेंट के बाद बहुत सारे विलेजेस लाइक सवारदी जो डिस्ट्रिक्ट रत्नागिरी में, वो क्या है, उसके वो और उसके लाइन क्लोज टू इट्स प्रॉक्सिमिटी मीन्स उसके नियर बाय एरियाज, वो भी धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, अर्बनाइज हो रहे हैं. कन्वर्जेंस ऑफ इंपॉर्टेंट रेल रूट्स थ्रू भुसावल लेड टू इट्स रैपिड ग्रोथ. और इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट रेल रूट्स जो भुसावल से निकले थ्रू जलका, वो भी क्या हो रहा है, इसकी वजह से भी वहाँ पर रैपिड ग्रोथ हो रहा है. मीन्स ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन भी एक रीजन है, मेन रीजन फॉर द अर्बनाइजेशन. नेक्स्ट, माइग्रेशन. Migration is a major factor affecting urbanization. दिस माइग्रेशन कैन बी शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और परमानेंट. माइग्रेशन का क्या मतलब होता है, देखो लोग कोई ना कोई रीजन से अपना जो नेटिव प्लेस है, मीन्स उनका जो मेन रीजन है जहाँ पर वो रह रहे हैं, रेसिडेंशियल एरिया है, वो छोड़कर कहीं और जाके सेटल हो जाते हैं. सो दैट इज माइग्रेशन. सो वो क्या हो सकता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, मतलब थोड़े टाइम के लिए हो सकता है वो माइग्रेट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए, या फिर परमानेंटली माइग्रेट कर रहे हैं. सो ये तीन टाइप के माइग्रेशन हो सकते हैं. Now migration occurs from rural area, the rural to urban area, or to urban to urban area. अब कोई पर्टिकुलर पर्सन रूरल से रूरल एरिया में ही जा रहा है, हो सकता है, या फिर रूरल से अर्बन एरिया में जा रहा है, या फिर अर्बन से अर्बन एरिया में. ये तीन तरीके से माइग्रेट कर सकते हैं. The attraction of higher standard of life has also resulted in an increase in migratory population in the cities. मीन्स के हायर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो एक हायर स्टैंडर्ड की लाइफ सर्वाइव करने के लिए, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ लीव करने के लिए क्या करते हैं, सिटीज़ में जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, माइग्रेशन अकरिंग इन सिटीज़ लाइक मुंबई, पुणे फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया. मतलब कि कुछ पर्सन्स क्या और कहाँ आ जाते हैं, माइग्रेट करके मुंबई, पुणे, ये सारे सिटीज़ में आ जाते हैं, ताकि वो क्या कर सके, एक हायर स्टैंडर्ड में सिटी वाली जो लाइफ है वो क्या कर सके, सर्वाइव कर सके. नेक्स्ट, इफेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन. अब अर्बनाइजेशन के कुछ रीजंस तो देख लिए हम लोग ने, बट इट हैज सम इफेक्ट्स, एंड इफेक्ट्स दोनों तरीके के हो सकते हैं, सम सॉर्ट्स ऑफ एडवांटेजेस, सम सॉर्ट्स ऑफ डिसएडवांटेजेस, राइट. सो वी विल स्टडी फर्स्ट एडवांटेजेस, आफ्टर दैट वी विल सी व्हाट आर द disadvantages of the urbanization. Because of urbanization, the characteristics of a region change largely.
We can experience the difference in land use. For example, the land under agriculture is now under industries or residential use. While there are many advantages of urbanization, some problems are also rising. Means जो अर्बनाइजेशन होता है उसकी वजह से एक पर्टिकुलर जो रीजन है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है लार्जली। तो उसकी वजह से हम लोग डिफरेंस एक्सपीरियंस करते हैं लैंड कल्चर के लिए जो लैंड अवेलेबल होती है, देन इंडस्ट्रीज एंड रेसिडेंशियल यूज के लिए जो भी हम लोग को लैंड अवेलेबल होती है उसमें क्या हो जाता है, डिफरेंस आ जाता है, राइट। देखो अब मेंशन किया हुआ है कि जैसे कुछ एडवांटेजेस है वैसे ही कुछ प्रॉब्लम्स भी होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, वी विल सी सम एडवांटेजेस ऑफ अर्बनाइजेशन। सो फर्स्ट, social harmony. So now let's see first advantage of the urbanization, that is social harmony. There is an increase in secondary, tertiary and quaternary occupations with urbanization. Hence economic activities increase. These areas English first का अब देखो जैसे इंक्रीज होता है सेकेंडरी टर्शरी एंड क्वार्टनरी ऑक्यूपेशन में, अर्बनाइजेशन इंक्रीज होता है तो लोग क्या करते हैं, प्राइमरी को छोड़कर आगे मतलब और आगे डेवलप करते हैं, सेकेंडरी टर्शरी ये सारे ऑक्यूपेशंस में इंडल्ज होते हैं और इस तरीके से फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी इंक्रीज होती है। These areas grow rapidly. Cultural and social customs and traditions are exchanged as people from different parts live together in the cities. This creates social harmony. और इस तरीके से फिर बहुत अलग अलग कल्चर, सोसाइटी से बिलोंग करने वाले लोग, कस्टम को फॉलो करने वाले एक साथ एक ही ट्रेडिशन एक ही इन्वायरमेंट में रहते हैं और वो क्या करते हैं, वो एक साथ रहते हैं एक सिटी में। तो इस तरीके से सोशल हार्मोनी क्या करते हैं, वो क्रिएट करते हैं। मीन्स अलग अलग कल्चर ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले लोग एक साथ रहते हैं। ओके, नेक्स्ट, मॉडर्नाइजेशन। इन cities people from different areas migrate. Their wisdom, skills and knowledge is exchanged easily. These areas are the first to get advantage of updated knowledge and literature. मीन्स कि अब देखो जैसे हम लोग को सोशल हार्मोनी क्रिएट होती है, मतलब इस अर्बनाइजेशन की वजह से अलग अलग कल्चर के लोग एक साथ आ जाते हैं तो वो क्या करते हैं, फिर अपने विजडम मीन्स उनकी नॉलेज, उनका जो स्किल है वो एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और फिर वो पर्टिकुलर एरिया एक अपडेटेड वर्जन, मतलब उनके पास एक अपडेटेड नॉलेज आ जाती है लिटरेचर की। सो वी कैन सी न्यू प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज एंड बिजनेसेस कमिंग अप हियर। से फिर न्यू प्रोजेक्ट्स, न्यू बिजनेस पैटर्न्स वहाँ पे इंक्रीज हो जाते हैं, स्टार्ट होना। अर्बन सेटलमेंट्स गेट एन एडवांटेज ऑफ न्यू आइडियाज और इस तरीके से उन्हें न्यू आइडियाज का एडवांटेज मिलता है, अपडेटेड टेक्नोलॉजीज टेक्नोलॉजिकल फैसिलिटीज मिलती है। देयरफॉर एज अ रिजल्ट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव्स और इसलिए जो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो क्या हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, एम्यूनिटीज इन फैसिलिटीज, मतलब वहाँ के लोगों को जो फैसिलिटीज, एम्यूनिटीज का मतलब होता है जो भी नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स, बेसिक रिक्वायरमेंट के अलावा वो जो भी उन्हें अदर फैसिलिटीज मिलती है। वेरियस एम्यूनिटीज एंड फैसिलिटीज डेवलप इन अर्बन एरियाज बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन। ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज, फायर ब्रिजेस एटसेट्रा आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये तो अवेलेबल होती है। बिकॉज ऑफ गुड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज जर्नी बिकम्स ईजियर। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होने की वजह से जर्नी है वो ईजी हो जाती है। और इस तरीके से फॉरेन ट्रांसपोर्ट, मार्केट, ट्रेड, सबका क्या होता है, एडवांटेज मिलता है। We see that even educational facilities develop well in urban areas. Many students come to urban areas specially to access the services of higher education in like Pune. Medical facilities are also well developed in urban areas to avail to these facilities. Now, क्या given है, देखो मेडिकल फैसिलिटीज भी क्या होती है, डेवलप हो जाती है। एजुकेशनल फैसिलिटीज वो अर्बन एरियाज की, मतलब कि वहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज मिलने लगती है, हायर एजुकेशन, हायर मेडिकल फैसिलिटीज। और ये सारी फैसिलिटीज को टू अवेल दिस फैसिलिटीज मैनी पेशेंट्स एंड देयर फैमिली मेंबर्स कम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स एंड स्टे फॉर शॉर्ट पीरियड। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई ट्रीटमेंट के लिए है, कोई विलेज एरिया में है तो उसको क्या करना पड़ेगा, अच्छी फैसिलिटीज कहाँ पर अवेलेबल होती है, सिटीज में, तो वो यहाँ पर आते हैं। तो इस तरीके से वो क्या कुछ फैसिलिटीज के लिए क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए माइग्रेट कर जाते हैं। तो इस तरीके से अर्बन पॉपुलेशन इंक्रीज होती है और अर्बनाइजेशन होता है। तो ये क्या है, कुछ एडवांटेजेस है। नाउ, problems of urbanization. There are some problems associated with urbanization like slums, traffic jams, pollution,
crime. So these are the four different problems that are associated. So now let's study them one by one. First, slums. Because of urbanization, the population in cities increases rapidly, but the housing facilities does not increase in the same proportion as the population. Most of the migrated people are economically weak. They cannot afford the house offered in the cities. Migrated people have generally come for employment, but it is not necessary that they get relevant jobs. Hence, incomes are very low. Such people build temporary and semi-structured house in open space. These houses are mostly illegal. They do not get basic facilities from local self-governments. The density of houses is very high. Roads are narrow. There is a lack of basic facilities. These slums keep on rising uncontrollably. This may give rise to social and health related issues. Okay, देखो slums means जो झोपड़ियाँ वगैरह बनाते हैं, छोटे छोटे हर्ट्स बनाते हैं. अब जो people urbanization की वजह से जो आ रहे हैं, अर्बन एरिया में रह रहे हैं माइग्रेट करके, तो उनके पास हो सकता है वो इकोनॉमिकली वीक हो, तो जो हायर प्राइसेस में हाउस वहां पर अवेलेबल है वो अफोर्ड ना कर पाए. जॉब्स के लिए आ रहे हैं तो उतनी अच्छी हो सकता है उन्हें जॉब ना मिले, तो उसकी वजह से वो क्या करते हैं, सेमी स्ट्रक्चर्ड हाउस बनाकर रहते हैं जो कि इलीगल होते हैं, और इलीगल होने की वजह से उन्हें सारी फैसिलिटीज नहीं मिल पाती है. तो ये एक प्रॉब्लम हो गई अर्बनाइजेशन की कि स्लम्स एरिया बढ़ जाते हैं. फिर ट्रैफिक जाम. नेक्स्ट, अब देखो ज्यादा पॉपुलेशन है तो वो लोग अपनी प्राइवेट व्हीकल्स यूज करना स्टार्ट कर देते हैं और उसकी वजह से ट्रैफिक जाम का प्रॉब्लम होता है. वही मेंशन किया मैं यहाँ पे. एज सिटीज ग्रो, पीपल स्टार्ट लिविंग इन द आउटस्कर्ट्स एंड सबर्ब ऑफ सिटी. People commute from the suburbs to the center of the city and for business and industries, trade, job, education, etc. Public transportation system is not sufficient and hence the number of private vehicles increases. This leads to an increase in traffic jams and traveling time increases significantly. क्या होता है कि लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या करते हैं, जब पब्लिक का ट्रांसपोर्ट सफिशिएंट नहीं होता, इनफ नहीं होता है, तो खुद के प्राइवेट व्हीकल्स लेते हैं और इसकी वजह से वो क्या करते हैं, ट्रैफिक जैम्स की प्रॉब्लम क्रिएट. Is the second problem we face due to the urbanization in the cities in the town. Third problem, pollution. Obviously, just because of all this slum areas, traffic jams की जो प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से पॉल्यूशन का जो एरिया है, पॉल्यूशन का जो लेवल है वो भी इंक्रीज होने लगता है. सो दैट इज मेंशन हियर. Pollution is a major problem in the cities. It has adverse effects on urban life. Air pollution, noise pollution, and water pollution are clearly visible. Increase in the development of the city. Paucity of facilities and breaking of laws makes pollution a big problem. As cities grow, pollution is also increases. Means ये जो ट्रैफिक जैम की प्रॉब्लम है और अदर इंडस्ट्रीज है अगर वहां पर, सो ये सारी चीजें क्या करते हैं, दे आर क्लियरली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द पॉल्यूशन. ये क्या करते हैं, पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं. हियर यू कैन सी एयर पॉल्यूशन इमेजेस, वाटर पॉल्यूशन, राइट. फिर लास्ट टॉपिक देखो क्या है, लास्ट प्रॉब्लम, क्राइम. द पीपल हु हैव माइग्रेटेड पीपल डू नॉट ऑलवेज फाइंड एम्प्लॉयमेंट इन द सिटीज. Some of them look for the means to earn money through illegal ways. This led to an increase in the crime rate of cities. Theft, burglaries, scuffles, and murders are the crime that happens in the city. This leads to serious law and order issues, bringing pressure on the police and judicial system. Besides the above problems, enormous increase in land prices, struggle between various groups, etc., create tension in the cities. This can disturb the social harmony of the city. अब देखो जो पीपल है वो हो सकता है इनका एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा उन्हें, वो जो एम्प्लॉयमेंट के लिए आए होते हैं सिटीज में और उनके पास सफिशिएंट अमाउंट नहीं होता, सफिशिएंट मनी नहीं होता है वहाँ सर्वाइव सिटी में सर्वाइव करने के लिए, तो वो क्या करते हैं, मनी अर्न करने के लिए इलीगल वेज ट्राई करते हैं. तो इस तरीके से वो जो थेफ्ट मीन्स जो चोरी, रॉबरीज है, मर्डर्स है, वो सब क्या हो जाते हैं, किडनैपिंग से सारे क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं. तो ये सारे क्राइम्स क्या कर रहे हैं, सिटीज में इंक्रीज हो रहे हैं. तो दैट इज ऑल्सो एन सीरियस इशू. वो भी क्या है, एक सीरियस इशू है. सो ये सारे प्रॉब्लम्स, जैसे कि कुछ एडवांटेजेस है वैसे ही कुछ प्रॉब्लम्स भी है, लाइक स्लम, ट्रैफिक जाम, पोल्यूशन एंड क्राइम्स ड्यू टू द अर्बनाइजेशन.